Dear aspirants, my greetings to all of you. Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are, right? So I hope all of you are doing good. Welcome to Unacademy. And when we talk about Unacademy, we know Unacademy is India's largest learning platform. Everyone knows this, right? So we have got the best educators for UPSC and other courses also. You know the names, you know the pictures. So give your UPSC CSE 2024 preparation a best start. We are starting a batch on November 24th. We are launching Arambh and Expedition batches. These are the comprehensive batches for UPSC CSE 2024. Don't miss the chance. Join Arambh or Expedition batches, right? So the features are mentioned over here. So this is RM batch, right? See the best faces, and they would be training you for this batch. This is a bilingual batch starting on November 24th. Also, we are starting an expedition batch, right? Again, you know the faces, right? It is also starting on 24th of November, but the best part is that this is only English batch. So aspirants who are actually interested in only English batches, this is your chance. Begin your UPSC CSC 2024 preparation, guys. The rates are also mentioned, so you can get a 10% discount. It's a 18 months plus GS and 18 months iconic GS batch. So details are given to you. Don't miss the chance. Whether it is bilingual or English, you have a chance to join both the batches. And nothing can stop from chasing your PCCSC dream. You can avail EMI options. So this is really good. You can actually avail 0% EMI options. The phone number is mentioned 85858585 and 85. Please join these batches. Avail this facility. My name is Rishi Bhargava, and I train students for UPSC CSAT, or you can say state CSAT, because obviously state civil services CSAT and UPSC civil services CSAT is no different. So you can prepare for CSAT for UPSC as well as for states with my classes, right? So please join me for Telegram. I would be sending you a lot of assignments, a lot of information. So please join Rishi Sir UPSC on Telegram and follow me on my community Bhargava Rish. All right. So today's topic, let's crack CSAT together. So I am running a series on Vedic mathematics. So I have done Vedic maths 1 and 2. Right, let me see. So I've done Vedic maths, Vedic mathematics 1 and 2. So most of the people are selling this course. I'm just giving it to you free. Please ask your younger brother, sister, elder brother, sister, relatives. If they have interest in Vedas, they should join these sessions. So today we are going to have third session on Vedic mathematics. So Vedic mathematics session 3. Vedic mathematics session 3. So after this, I would be having more on shortcuts and techniques. That would be Guru Mantra 1, 2, 3, 4 on percentages. And then we will start with time and distance, time and work as topics. So I hope you are enjoying my classes. Your comments on my YouTube videos are actually the biggest showcase of your appreciation. So please send some comments so that I also improve, and I hope that you can share the knowledge that I'm sharing with you, and I hope that you are developing better skills with these videos. So now when we talk about Vedic maths, basically it's about calculations. Most of it is about calculations and faster calculations, isn't it? 1 और 2 में, वैदिक मैथ्स 1 और 2 में हम लोगों ने जब सेशन लिया था,
वैदिक मैथ्स 1 एंड 2. सो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी ट्रिक्स सीखी थी. मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, isn't it? We learned a lot about multiplication tricks, or now we would use Vedic mathematics again, but now today I'm going to use it for squaring and cubing, and if time permits I would be talking about square roots and cube roots as well. So don't go away, please enjoy this video. Right now, squaring is actually easy, simply very easy actually. So I'm going to develop a technique, or I'm going to showcase a technique with which we can square any number, any 4-digit number, 5-digit number, 6-digit number. So you would also enjoy it. But before that, I wish that you know squares of number from 1 to 30. So you may note down 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, then 16, then 25, 36, 49, 64, 81 and 100. Squares of first 10 numbers, then 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400. Right? So 11 square, 12 square, 13 square, 14 square, 15, 16, 17, 18, 19, 20 square. Right? Then 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841, 900. I may continue if I want to. So you should be comfortable with 1 to 30, or I really love when students do it from 1 to 40 or 1 to 50, but 1 to 40 genuinely they are again easy. 961, 1024, 1089, 1156, 1225, 1296, 1369, 1444, 1521, 1600. सर आपने कैसे याद किया है? सर रट लिया है. अरे यार तुम लोग इतना डेट्स याद करते हो हिस्ट्री में, इतना फैक्ट्स याद करते हो ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स के फैक्ट्स याद कर लेते हो, तो ये तो नंबर से 40 यार, कितना का मुश्किल है. नो डाउट आई थिंक यू गाइस कैन डू इट एंड आई कैन मेक इट ईजी फॉर यू. लेट मी मेक इट ईजी फॉर यू. पहला तो यार देखो, एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, कोई भी नंबर जब 5 से एंड होता है, सपोज आई से 45, इसका स्क्वायर करना है तो इसके स्क्वायर के पीछे हमेशा 25 होगा और 2 स्पेसेस और बना लीजिए. सो एनी नंबर एंडिंग विद 5, इट्स स्क्वायर वुड एंड विद 25. अ ब्यूटीफुल रिजल्ट, राइट. एंड देन आई से ये 4 है डिजिट. आप देखिए प्लीज पे अटेंशन, दिस डिजिट इज 4. 4 से अगला नंबर क्या होता है? 5. 4 into 5 is 20, तो 20 यहाँ लिख लीजिए. 20, 25. अरे सर ये तो बहुत इजी है. कोई भी नंबर जो 5 से एंड हो रहा है, 65 का स्क्वायर देखिए, 25 पीछे लिखिए. 6 से बड़ा नंबर क्या है? 7. 6 7 जा 42, 4225. 75 का स्क्वायर सर 25. 7 8 जा 56. 85 का स्क्वायर सर 25. 8 9 जा 72 सर. 95 का स्क्वायर 25. 9 10 जा 90 and so on. So I think a number ending with 5 is a very easy thing, which means अपने को अगर तुम देखोगे guys, this 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर तो समझ में आ गया. इट्स वेरी इजी, राइट? यस सर, इट इज़ राइट, है ना? बिल्कुल ठीक है. तो अगली बात देखो, आई थिंक इफ़ यू आर ऑब्जर्वेंट, अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखते हो, लेट मी यूज़ डिफरेंट कलर पेन, राइट? तो आई थिंक 20 तक सबको आते हैं. अगर नहीं आते तो यार याद कर लो. 20 तक तो स्क्वायर सबको आते हैं, राइट? 20 से आगे में देखेंगे, अगर आप 25 तक याद कर ले, उसके बाद मामला बहुत आसान है, इजी है, सीरियसली आसान है. चेक करो 1 से लेके 25 तक बहुत इजी हैं. अब उसके बाद 576 प्लस 100 is 676. 529 प्लस 200 729. 484
84 प्लस 300 784, 441 प्लस 400 841. सी कितना आसान हो गया. सो यू कैन से सर डज इट कंटिन्यू. यस. 400 प्लस 500 900, 361 plus 600 961, 324 plus 700 1024, 289 plus 800 1089, and then you know what, 256 plus 900 1156, and 225 plus 1000 1225, 11,000 1296, 12,000 1369, 13,000 1444, 14,000 1521. हो गया यार. Right. So it is a backtracking of table of 100, 100, 200, 300, 400 ऐड करते जाओ इनमें. 100 इसमें ऐड किया, 200 इसमें, 300 इसमें, 400 इसमें, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400. आगे वाले सारे आते जाएंगे. याद कर लो, नहीं तो इतना प्यारा रिजल्ट तुम्हें, मुझे नहीं लगता कभी तुमने ऑब्जर्व किया होगा. अगर तुम्हें पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना. दैट वुड बी ऑसम. अच्छा लगेगा मुझे भी यार. होशियार बच्चे हैं सारे. तो चेक कीजिए पहले. ये क्लियर है सर? फ़ायदा क्या है? देखिए फ़ायदा तो बहुत है. पहले आप इसको लिख लीजिए याद करने के लिए, है ना. उसके बाद देखते हैं कि क्या फ़ायदा है ना. एक तो आपने ये याद कर लिया. 1 to 30 याद करना है, 1 to 30 याद कर लीजिए. मैंने एक मेथड बता दिया है. 1 to 40 को याद करना है तो 1 to 40 याद कर लीजिए. ठीक है. अब देखते हैं स्क्वायरिंग करते कैसे. पहले तो यार एक मेथड जो मुझे बहुत अच्छा लगता है स्क्वायरिंग का, वो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सर ये तो हमें भी पता है, तो इसको यूज़ करके स्क्वायरिंग किया है कभी? सर बहुत बार किया है. कैसे देखो, 43 का स्क्वायर आप करेंगे 40 प्लस 3 का स्क्वायर विच इज 40 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 40 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर. नो आई डोंट वांट दिस. ये नहीं चाहिए यार मुझे, ये नहीं करना है. ना 2 डिजिट नंबर के लिए ये अगर स्क्वायरिंग कभी भी करनी है तो ये बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है. और ये फॉर्मूला तो सबको याद होता है, तो मैं फिर से लिख रहा हूं. देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a इंटू बी प्लस b स्क्वायर. और ab के नीचे ab लिख लीजिए और ऐड कर लीजिए तो इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. आप मानते हैं इसको? यस सर, ये तो सेम ही चीज़ लिख दिया आपने. तो ab प्लस ab हो रहा है ना. सो अब ध्यान से देखना, 43 का स्क्वायर, a को मान लीजिए 4 और b को मान लीजिए 3. सो चेक इट. a स्क्वायर 4 स्क्वायर 16, राइट. 3 स्क्वायर 9, 4 इंटू 3 12, ऐसे लिख लिया. ठीक है. दिस इज a स्क्वायर ab b स्क्वायर. अब ab के नीचे दोबारा ab लिखा जाता है, 12 के नीचे दोबारा 12 लिख लीजिए. अब ऐड कर दीजिए. ये 9 नीचे गया 9, 12 प्लस 12 इज 24, 4 यहाँ 2 कैरी, and 16 plus 2 is 18. Your answer is 1849. बताइए, 43 का स्क्वायर इज 1849. सारी उम्र तुम्हें ये फॉर्मूला पता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर. इसको यूज नहीं करना आता था, है ना. सर ये कैसे किया, फिर से देखते हैं, है ना. एक बार और चेक कर लेते हैं. सो सर वन मोर एग्जाम्पल सर. यस, आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. आई से व्हाट इज 56 का स्क्वायर. So 5 square 25, 6 square 36, 5 into 6 30, बीच में 30 और लिखिए, नीचे गया 36, 6 लिखा 3 कैरी, राइट. 30 प्लस 30 is 60 प्लस 3 63, 6 कैरी, 26 5 प्लस 6 31, 3136. कैलकुलेटर है तो चेक करते रहो, गलत नहीं हो सकता, वादा है. सर दिस इज गुड. हाँ, मुझे लगता है आपको अच्छा लग रहा होगा. वैदिक मैथ्स बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही आसान मेथड्स हैं. पर ये वैदिक मैथ्स नहीं है यार, ये तो मैंने फॉर्मूला से यूज़ करके किया है. ठीक है.
वैदिक मैथ्स वाले फंडे भी करेंगे सर। वन मोर, एक और सर, एक और। सो 2 डिजिट के लिए बहुत आसान हो जाता है एक्चुअली। मैं बोलता हूँ बड़ा वाला स्क्वायर करते हैं, राइट। सो मैं बोलता हूँ 91 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर इज 81, 1 स्क्वायर इज 1 एंड 9 इंटू 1 इज 9। एक 9 और लिखा, 1 नीचे, 9 जमा 9 18, एक यहाँ, 8 2 8 1, 91 का स्क्वायर। वाओ सारी उम्र वो बोलते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 3 आखर गणित के पढ़े सो पंडित होए नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए होता है, पर मैंने चेंज कर दिया, आई एम सॉरी, राइट। तो अब और देखिए सर, वन मोर। सो ऐसे कोई भी कर लो यार। 63 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 6 3 18, 18 में 18 और ऐड 9, 18 जमा 18 36, 3 कैरी 3 9 6 9। बताओ कोई गलती है तो बता दो। कैलकुलेटर है तो चेक कर लो, मुझे तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये आंसर आएगा। सो क्यों याद किए थे वो फॉर्मूले? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। सर ये कौन सा फॉर्मूला बोल दिया? a प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस b, है ना। सो 3ab टाइम्स a प्लस b को लिखते हैं 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बट अगर उस फॉर्मूला को यूज करो तो तुम क्यूबिंग भी कर सकते हो, राइट। वो भी बात करेंगे पहले। आई होप दिस मेथड ऑफ स्क्वायरिंग इज कूल। यस सर, दिस इज प्रीटी कूल। हाँ, आसान है, इजी है, अंडरस्टैंडेबल भी है ना। और मेथड देखते हैं स्क्वायरिंग के। अब बात करते हैं वैदिक मैथ्स की। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वैदिक मैथमेटिक्स, राइट, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? बेसिस। हम लोग क्या यूज करते हैं? बेसिस, राइट। बेस 100, 1000, 2000। तो क्या सर बेस मेथड से भी स्क्वायरिंग हो सकता है? बहुत इजीली हो सकता है। देखो बेस मेथड में पहला लिख रहा हूँ ऐसे, व्हाट इज 81 का स्क्वायर। तो अपन लोग क्या बोलते हैं? बेस 100। एक बार मेथड लिख रहा हूँ बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि मेथड लिखा हो तो आसान हो जाता है, और मैं भी मानता हूँ, मैं भी एक ऐसा ही स्टूडेंट रहा हूँ। सो बेस इज 100, 100 से कितना कम है सर? -19। तो ये देख लीजिए 81, 100 से कितना कम है? -19। सो थर्ड स्टेप है जो बहुत एसेंशियल स्टेप है, द नंबर ओरिजिनल नंबर माइनस जितना कम था, 81 माइनस 19। तो ऐसा कीजिए 81 माइनस 20 कर दीजिए, 61 प्लस 1 62। सो योर आंसर इज दिस इज 62। और यहाँ पे वो वाला आंसर लिख लीजिए 62, एक पार्टीशन और 2 स्पेसेस, राइट। 62 लिखा, एक पार्टीशन 2 स्पेसेस। 2 स्पेसेस क्यों है? जितनी नंबर ऑफ जीरोस हैं उतनी स्पेसेस हो जाती हैं बेस में। उसके बाद व्हाट इज -19 का स्क्वायर? 361। सो 61 यहाँ, 3 यहाँ, आंसर इज 6561। लीजिए ये 91 का था, राइट। 81 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर से करोगे, 8 स्क्वायर इज 64, 1 स्क्वायर इज 1 एंड दिस इज 8, 8 1 6 6561। लीजिए आंसर। हाँ, सो ये है कि यू कैन डू इट इन योर माइंड इफ यू आर गुड, बिकॉज ये सारे स्टेप मैंने लिख दिए हैं, पर तुम्हें कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बिना लिखे भी इसको कर सकते हो। एक बार मेथड लिख लो, फिर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते। मेथड लिख लो एक बार, वी विल प्रैक्टिस इट अगेन, डोंट वरी। सो लेट्स सी सर एक और। सो ऐसे व्हाट इज 89 का स्क्वायर। अब मैं मेथड नहीं लिखूंगा, बेस इज 100, 100 से कितना कम है? 11। 89 माइनस 11, 89 माइनस 11, यही एक स्टेप है। कितना कम है? 11 कम है। सो ओरिजिनल नंबर -11, 89 माइनस 11 इज 78। सो आपने लिखा 78, राइट। और 11 का स्क्वायर है 121, एक यहाँ 7921। चेक कर लीजिए। दिस इज इजी, है ना, आसान है। बट ये वर्क करता है अगर तुम्हें स्क्वायर याद हो, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा, समझे। द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड इज कि तुम्हें स्क्वायर याद है तो ये वर्क करेगा। अगर तुम्हें स्क्वायर ही याद नहीं है 1 से लेके 40 तक, क्योंकि देखो 11 का स्क्वायर हमें याद था तो 121 लिख लिया मैंने, है ना।
सो फॉर एग्जाम्पल फिर मैं बोलता हूं 71 का स्क्वायर चाहिए, 71 का स्क्वायर चाहिए, राइट। तो 71 100 से कितना कम है सर? 71 100 से 29 कम है, सो 71 माइनस 29, राइट। तो 71 माइनस 30 कर दीजिए, 41 42 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? 42, isn't it? 71 पहले माइनस 30 करो, ठीक है कि नहीं? तो 41 प्लस 1 कर दो। सो आई एम व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम सेइंग माइनस 29 की जगह इट इज 79 माइनस 30, 71 माइनस 30 प्लस 1, isn't it? तो वो इजी हो जाता है। तो 19 29 कभी भी माइनस करना है, माइनस 20 प्लस 1 माइनस 30 प्लस 1, सो 42 हो गया, राइट। सो वंस 42 इज हेयर, उसके बाद तुम्हारा 29 का स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज 29 का स्क्वायर? तुमने खुद देखो याद किया हुआ, यहां से 29 का स्क्वायर उठा लीजिए, राइट। 841, ठीक है कि नहीं? सो नाउ दिस इज द रीजन हम लोग बोलते हैं कि स्क्वायरिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। देखो अगर तुमने याद ना किया होता तो फिर तो प्रॉब्लम है, isn't it? देन इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। 841, तो तुमने 841 यहां लिखा, 41 यहां, 8 यहां, आंसर इज 5041, 5041। बट अगेन तुम्हारे ये तो मन में करना है, नहीं तो ये मेथड तो बहुत आसान है। 71 1 स्क्वायर इज 1, 7 स्क्वायर इज 49 एंड दिस इज 7, 7 मोर 1, 14 1, 5041 लीजिए। सो मेथड तुमने पिक करना है, ठीक है कि नहीं? इट इज योर ओन चॉइस विच मेथड यू वांट। बेस मेथड्स आर आल्सो गुड। बेस 100 का फायदा क्या है वो भी हम करेंगे बात, पहले इसको नोट कर लीजिए। काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। सबसे बड़ा फायदा क्या है? छोटे नंबर के लिए भी यूज होता है, बड़े नंबर के लिए भी यूज होता है। सपोज मैं कहता हूं 112 का स्क्वायर चाहिए। अगेन आई एम राइटिंग द मेथड, बेस इज 100 से कितना बड़ा है? प्लस 12। दिस इज इंपॉर्टेंट, कितना बड़ा है? प्लस 12। सो द थर्ड स्टेप नाउ चेंजेस। अब ये चेंज हो जाएगा थर्ड स्टेप, ओरिजिनल नंबर प्लस द इंक्रीमेंट विच इज 124। तो तुमने लिख लिया 124 and partition in 2 spaces. Now what is 12 square? It is 144. So 44 यहाँ 1 carry 1 2 5 4 4. Isn't it? So जब बड़ा है the best thing is कि तब तुमने ऐड करना है, ओरिजिनल नंबर में ऐड करना है। जब छोटा था तो ओरिजिनल नंबर से सब्सट्रैक्ट करना था। एक बार नोट कर लो इसको, बिकॉज आई हैव रिटन द मेथड। बट क्या मेथड लिखने की जरूरत है? बेस मेथड के लिए मेथड लिखने की जरूरत नहीं होती है। अब ये बेस मेथड फायदेमंद है क्योंकि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं यूज कर पा रहा हूं मैं, राइट। यूज तो कर सकता हूं बट अगेन इट वुड बी अ डाइसियर थिंग टू डू। आई थिंक इट वुड एक्चुअली बी अ वेरी वेरी डाइसी थिंग टू डू। देखो अब तुम्हें 11 और 2 मानना पड़ेगा, isn't it? 11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 and this is 22, so 22 यहाँ 4 and you add this is 44 and 4 carry 1 2 5 4 4. So take the two numbers as 11 and 2, a as 11 b as 2, ठीक है? तो उससे हो तो जाएगा बट चॉइस फिर से तुम्हारी है, ठीक है कि नहीं? तुमने कितने स्क्वायर याद किए हैं वो इंपॉर्टेंट है। सर वन मोर, सो लेट्स डू 121 का स्क्वायर, 121 का स्क्वायर कितना बड़ा है? 21। सो ये इजी हो जाता है। 121 जमा 21 इज 142, 142, राइट। और 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। सो 41 ओवर हेयर, 4 ओवर हेयर, 14641। और ये एक मजेदार नंबर है 14641। इधर से पढ़ोगे 14641, दूसरी तरफ से पढ़ो 14641। इट्स कॉल्ड अ पैलिंड्रोम। जो आगे और पीछे दोनों तरफ से सेम पढ़ा जाए उसको बोलते हैं हम लोग, उस नंबर को बोलते हैं पैलिंड्रोम, राइट? पैलिंड्रोम। सो आगे से भी सेम पढ़ा जा रहा है, पीछे से भी सेम पढ़ा जा रहा है,
तो तुमने बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट देखे होंगे। देखो 11 का स्क्वायर पैलिंड्रोम है 1 2 1, 111 का स्क्वायर है 1 2 3 2 1, एक 1 1 1 1 का होल स्क्वायर है 1 2 3 4 3 2 1, 1 1 1 1 1 का स्क्वायर है 1 2 3 4 5 4 3 2 1. So this is a kind of a palindrome that keeps on increasing, right? So double one का होल स्क्वायर होगा 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. Just a mere observation actually gives us beautiful results, right? छोटी सी ऑब्जर्वेशन आई होप आपको पसंद आई होगी। सो लिमिटेशन कोई नहीं है। लिमिटेशन के केस में प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, जब हमारे याद को स्क्वायर्स खत्म हो जाते हैं, बेस 100 खत्म हो जाता है, राइट? बिकॉज अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज 243 का स्क्वायर, अब इसमें यू कैन नॉट यूज अ बेस, तो फिर फायदा ही कोई नहीं है, इजंट इट? कई लोग तुम्हें सिखाएंगे 200 बेस ले लो, 250 बेस ले लो, ये सब याद ही नहीं करना है। मैं तुम्हें एक सिंगल मेथड सिखा रहा हूँ, एक सिंगलटन मेथड है जो सारे नंबर्स को स्क्वायर कर देता है, उसकी बात करेंगे। उससे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस अ रियल इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। वो रियल इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ये आ जाती है कि कैन यू सॉल्व 898 का स्क्वायर विदाउट एक्चुअली राइटिंग द मल्टीप्लीकेशन? So now the only change would actually be basis 1000 कितना कम है -11, राइट? कितना कम है -11, so third is 898 -11, so definitely it is 978. तो तुमने लिखा 978, एक पार्टीशन बनाई और 3 स्पेसेस बनाए। अब देखो 3 स्पेस किस लिए? बिकॉज ऑफ 3 zeros, एंड देन व्हाट इज -11 का स्क्वायर 121, सो योर आंसर इज 121, 978 121। सो बेस की एक बहुत अच्छी बात क्या होती है, यू कैन एक्सटेंड इट, इजंट इट? यू कैन इजीली एक्सटेंड इट। देखो यार कितना टफ होता अगर मैं किसी को ऐसे ही बोल दूं व्हाट इज 999 का स्क्वायर, बट आपको पता है 1000 से कम है, तो आप तो बहुत इजीली लिख सकते हो सर 998 डैश डैश डैश, इजंट इट? 998 डैश डैश डैश, एंड 1 का स्क्वायर इज 001, so your answer is 998001, isn't it? What is 998 का होल स्क्वायर? So definitely 998 minus 2 is 996, and 2 का स्क्वायर is 004, है ना? So now you can easily write the toughest of the toughest propositions. The logic is that we know the squares, so हम base 1000 यूज करें, किसी को पता भी नहीं चल रहा है, because एक बार तुम 1000 base लिख लो उसके बाद तो सिंपल सा ही है ना? Suppose I say what is 981 का स्क्वायर, सो माइंड में यही चलेगा कितना कम है सर, 19 कम है, 981 माइनस 19 इज व्हाट, 962, 19 का स्क्वायर इज 361. कैन यू इमेजिन इट कैन बी सो फास्ट? 962 361, राइट? सो प्लीज दिस इज इंपॉर्टेंट, बड़ा हो छोटा हो तुम्हें एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई से व्हाट इज 1024 का स्क्वायर, सो अब तुम्हें पता है बेसिस 1000 कितना बड़ा है +24, थर्ड स्टेप इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, 1024 +24 comes out to be 1048, so 1048 1 2 3, right? And then what is 24 का स्क्वायर? 576, so 1048 576. तुम्हें लगता है ये इतना आसान होता? नहीं। अगर तुम्हें मेथड नहीं पता होता सो डेफिनेटली इट कुड नॉट हैव बीन दैट इजी। यार इतना आसान नहीं होना था। ये इजी क्यों है? क्योंकि वी आर अप्लाइंग अ वेरी ब्यूटीफुल मेथड, इजंट इट? सो एक्सटेंशन तुम कहीं तक भी ले जाओ, चॉइस तुम्हारी है ना? तो एक्सटेंशन का तो कोई वो नहीं है कि सर कितना एक्सटेंड करना है। सो इट इज़ अप टू यू, इट इज़ योर नॉलेज, इट इज़ योर प्रैक्टिस। तुम बड़े आराम से कर सकते हो, बड़े आराम से इनको मुँह ज़बानी भी कर सकते हो। देखो ऐसे
वट इज 1022 का होल स्क्वायर, सो आंसर लिख रहा हूँ 1044, क्यों 1022 प्लस 2 सो 1044, 24 का स्क्वायर इज 484, लीजिए आंसर। क्लियर? यस सर, दिस इज गुड, है ना। सो अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, सी द पॉइंट इज यू हैव टू प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा ये। क्लास बहुत अच्छी लगेगी पर भूल जाओगे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सेंड यू सम असाइनमेंट्स ऑन टेलीग्राम, राइट। तो उसमें तुम्हें लगेगा कि हाँ सर इस तरह प्रैक्टिस करनी है। इफ़ यू से सर आप कैसे करते हो, तो फ्रैंकली ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैं भी करता रहता हूँ। तो माइंड को बाकी सारी चीज़ों से ब्लॉक करना पड़ता है और सिर्फ नंबर्स के साथ खेलना पड़ता है, समझे। तो बाकी बाहर की इश्यूज़, बाहर के प्रॉब्लम्स, यूपीएससी की प्रॉब्लम सब छोड़ के सिर्फ इधर ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप 100 मैथड बेस मैथड इज़ ओके, बट यहाँ की एक ब्यूटी और है 50 बेस मैथड, और मुझे ये अच्छा लगता है 50 बेस मैथड, बिकॉज इसको एक्सटेंड कर दोगे तो ये 500 बेस 5000 बेस बन जाएगा, 50,000 बेस बन जाएगा, जो कि एक्चुअली यूजफुल है, राइट। सो 50 बेस मैथड, व्हाट इज अ 50 बेस मैथड, राइट। तो अगर आप देखोगे 50 बेस मैथड क्या है, मैं बोलता हूँ व्हाट इज 62 का स्क्वायर, सो आई टेक बेस 50, 50 से कितना बड़ा है +12, सेम है 50 से कितना बड़ा है +12, बट द थर्ड स्टेप इज डिफरेंट। इसमें 50 बेस में थर्ड स्टेप डिफरेंट होता है, इट इज थर्ड स्टेप इज 25 प्लस इंक्रीमेंट, 25 पे एडिशन होती है, ओरिजिनल नंबर पे एडिशन नहीं होती है, 25 पे एडिशन या सब्सट्रैक्शन होती है। 25 प्लस 12 इज 37, तो तुमने लिखा 37, यहाँ एक पार्टीशन 2 स्पेसेस, और इधर 2 स्पेसेस होंगी नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द बेस, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 हैं 500 बेस में, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स पे स्पेसेस होंगी, सो नंबर ऑफ डिजिट्स आर 2, सो 2 स्पेसेस, राइट। एंड देन इट फॉलोज द सेम रूट, व्हाट इज 12 स्क्वायर, it is 144, so write 44 over here, 1 to be carried, it is 3844, 3844। चेक कर रहे हैं, चेक कर लो, 62 4 36 and this into this is 12 12 4 12 plus 12 24 3844, लीजिए। क्लियर? ऑसम, है ना। दिस इज समथिंग यू माइट नॉट हैव इवन थॉट, 50 बेस। सो 50 बेस, बस थर्ड स्टेप जो है, सो आई एम मार्किंग इट, थर्ड स्टेप जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, सो कीप द थर्ड स्टेप इन इंटैक्ट। 25 पे काम करेगा, हाफ ऑफ द बेस पे काम करेगा बस, राइट। सर वन मोर एग्जांपल, सो लेट मी क्रिएट वन मोर एग्जांपल। चलो एक छोटा नंबर लेके देखते हैं। आई से व्हाट इज 44 का स्क्वायर, सो बेस इज 100, 50 यार, 50 से कितना कम है सर, इट इज -6 लेस। थर्ड स्टेप इज अगेन, दिस इज इंपॉर्टेंट, 25 - 6 विच इज 19, सो पुट 19 ओवर हियर एंड 2 स्पेसेस, एंड व्हाट इज -6 का होल स्क्वायर, इट इज 36, सो 1936 इज आवर आंसर। चेक कर लो, चेक करें गाइस, यू वांट मी टू चेक इट। 44, सो दिस इज 16 16 16 16, हाँ 16 नीचे गया, 6 लिखा, 1 कैरी, 32 33, है ना, 3 कैरीज, 1936। क्लियर? सो उस तरफ भी देखिए, अगर 16 है तो ये नीचे आके 6 लिखा जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। दिस इज अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन, राइट। सो 150 बेस हमेशा ध्यान में रखना है। सपोज मैं बोलता हूँ व्हाट इज 49 का स्क्वायर, अब मैं विदाउट एनी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, 50 से कितना कम है, माइनस कम है, बिना लिखे कर रहा हूँ। 49 इज हाउ मच लेस देन 50 इज -1, सो 25 - 1 24, एंड -1 का स्क्वायर 01। हाँ, व्हाट इज 51 का स्क्वायर, कितना बड़ा है, +1, 24 25 + 1 26 2601, है ना। सो इजी हो जाएगा, है ना। सो चॉइस तुम्हारी है विच मेथड टू फॉलो, विच नॉट टू फॉलो। 50 बेस एज सच मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर्स के लिए होता है, एंड फ्रैंकली इफ यू टॉक अबाउट 2 डिजिट नंबर्स यार, तो वो a + b का होल स्क्वायर मेथड इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। क्लियर?
But what matters to me and what is important to me is base 500. This is where 50 base methods actually are good. मेरे को फिर ये अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा. ऐसे what is 521 का स्क्वायर, so base 500, right? Second कितना बड़ा है, plus 21. Third step is, this is important, 250 plus 21, 271. 250 plus 21, 271. तो 271 यहाँ लिखिए, और 3 स्पेसेस किस लिए, अब बेस में 3 डिजिट्स हैं, राइट. एंड देन फोर्थ वन, व्हाट इज 21 का स्क्वायर, इट इज 441, 441, 271, 441. आप प्लीज, अगर आपके पास कैलकुलेटर है, आप चेक करके देख सकते हो. योर आंसर वुड बी सेम. Yes, 271441. So, फिर I think this is good. Now, I consider this to be a good method, right? So, आप छोटा नंबर, बड़ा नंबर, चॉइस हमारी है. जैसे it would be so tough to do 499 का square, isn't it? But over here, if you take base as 500, so how much less than 500 is minus less than 500, which is 250 minus 1, 249, right? 250 minus 1, 249, and 1, 2, 3. What is minus 1 का square? It is 1001. 249 001. चेक करके देखो. 499 का square. So there is no limitation. It is up to you, sir. 515 का square. So now I am not using anything. I say 250 plus 15 is 265. 1, 2, 3. 15 का square is 225. 265, 225. Clear? Great, right? Similarly, तुम बोलता है सर what is 481 का square? So it is minus of 19. So 250 minus 19. So it is 250 minus 20 plus 1, 231. 231. And what is 19 का square? 361. 231, 361. Clear, guys? है ना? So see, up to you. It's all above anything you think, right? So sir, one more example from here. So I say, what is 501 का square? So it is 250 plus 1, 251, and 1 का square is 001. है ना? So now you are comfortable with bases. And believe me guys, if you are comfortable with bases, then only you are able to sort out a lot of calculation issues, right? If you are good at 500 as base, obviously you would be able to do this, sir. What is 4999 ka whole square? Now it is base 5000, isn't it? So how much less? It is minus 1 less. Second would be 2500 minus 1, isn't it? Now this is something that has to be understood, that it is working on half the base, right? It is working on half the base, which is 2499. So you write 2499 and then 4 spaces, 1, 2, 3, 4, and then minus 1 ka square is again 1, which is 0001. Just check it on your calculator. You would be amazed that you are getting the same answer. Check कर लीजिए एक बार. Yes, 24990001, right? So फिर there is no holding back. There is no holding back if you are good at calculations. For suppose, for example, I say what is 99999989 का whole square. All I need to count is digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So your base becomes 10 to the power 8. Your base becomes 10 to the power 8, and then you know how much less than 10 to the power 8? It is minus 11 less than 10 to the power 8. And if I say 999989 minus 11, isn't it? Which comes out to be 999999, right? 78. So you write 999999,
9978 and one partition, and how many spaces? 1 2 3 4 5 6 7 8. And the fourth step is, what is minus 11 ka whole square? It is 121. So 1 2 1 and then rest are all zeros. So now your answer is 9999997800000121. Tell me, could that have been possible अगर तुम्हें ये method नहीं पता होता? It is highly improbable, right? So please respect the base methods. They are actually wonderful. They actually give you awesome results, right? For example, for cubing also, I can use a base method, but you have to be very specific and sure about the base method. So before cubing, I say, let me use one thing: a plus b ka whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है ना? तो can I write it as a cube plus a square b plus ab square प्लस बी क्यूब, और नीचे लिखिए 2a स्क्वायर बी एंड 2ab स्क्वायर. सो आपका आंसर जो अगर ऐड करोगे, इट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब आ जाएगा. यू गेट द सेम आंसर. एंड देन प्लीज एक और ऑब्जर्वेशन जो कि बड़ा मजेदार ऑब्जर्वेशन है. व्हाट इज a क्यूब, आई एम सॉरी, व्हाट इज a क्यूब इज टू, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट देखना, इन दोनों का रेशियो देखना. a क्यूब, व्हाट इज a क्यूब इज टू a स्क्वायर b, इट इज a इज टू b. इन दोनों का रेशियो a क्यूब इज टू a स्क्वायर b इज a इज टू b. अच्छा, फिर इधर से इधर इन दोनों का रेशियो देखना. व्हाट इज a स्क्वायर b इज टू a b स्क्वायर, इट इज a इज टू b. व्हाट इज a b स्क्वायर is to b cube, it is again a is to b. अगर तुम ये चीज समझ लेते हो तो मैं बहुत इजीली किसी भी नंबर का क्यूब कर सकता हूं. इट्स वेरी इजी टू डू. हाउ डू यू डू इट देन गाइस? How do you do it? So for example, I say you have to do 13 cube. First number is a cube. So this is a, this is b, right? This is a, this is b. So a cube, 1 cube is 1. Now I don't want you to do a square b. ठीक है, क्यों करना है? एक a और एक b लिख के a square b क्यों करना है? Rather consider this is to this as 1 is to 3, right? Consider this as 1 is to 3. देखो यहाँ आ रहा है ना a is to b. So 1 is to 3 तो अगला नंबर 3 हो जाएगा, है ना? So फिर से this number is to this number is again 1 a is to b 1 is to 3, so ये हो जाएगा 9. See, this is 1 is to 3, this is 1 is to 3, फिर से अगला नंबर is 1 is to 3, वो हो जाएगा 27. See, 1 is to 3, 1 is to 3, 1 is to 3. So ये basically you keep on multiplying by 3. और इन दोनों के मिडिल वाले नंबर्स के नीचे इनका डबल लिख लीजिए. दिस इज 18 and this is 6. Right, and then you just add. 27 goes down, 7 return 2 carry, so this is 29, 9 return 2 carry, and this is 11. See, 11, 1 return 1 carry, 2197. 13 cube is 2197. Huh? Clear? This is awesome, sir. Nahi? Guys, have you ever thought about it? 13 into 13 into 13, 2197, right? Sir, one more example please. So I say, what is 15 ka cube? So take this as a, this as b. First number is a cube, which is 1. Then a is to b 5, फिर से a is to b 25, a is to b 125. नीचे में इसका डबल लिखा 50 and 10. Just add 125, 5 return 12 carried. Right, and 50 plus 25, 75 plus 12, 87, 7 return 8 carried, right, 23, 2 carried, 3375. Answer. Easy? Yes sir, this is awesome. Check कर लो. हाँ sir, can we do it on the numbers
bigger number. See, choice is yours, right? तो तुम लोग basically you know most of the teachers will tell you to remember cubes from 1 to 25. एक क्यों याद करना है यार? लो 21 का क्यूब, this is A, this is B. A cube is 8. Now write 2:1 ratio, so it is 4. 2:1 2, 2:1 this, middle पे double, add 1 6 12 1 9 2 6 1. Oh yes. Right, I love calculation. So 23 का cube. So please do not remember cubes from 1 to 25. Don't need to remember. 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64, 5 cube is 125, 6 cube is 216, 7 cube is 343, 8 cube is 512, 9 cube is 729. ठीक है, ये याद क्या करना है यार, सारी उम्र तो हो गया तुम लोगों को ये क्यूबिंग करते हुए, राइट? सो 23 का क्यूब, फर्स्ट नंबर इज 2 cube which is 8. Then you have to write 2:3. See, 4 2s are 8, 4 3s are 12. Right? Again, this is 2:3. 6 2s are 12, 6 3s are 18, 9 2s are 12, 9 3s are 27. Add 18, 24. Double नीचे लिखा यार, so 36. Sorry, 18 है ना? This is 36. 36, right? Add 27. 7 लिखा, 2 carry, 56, 5 carry, 36, 4 4 1 1 2 1 6 7. हो गया? So I hope that you practice. इसका सबसे बड़ा एसेंस क्या है? इसका एसेंस है प्रैक्टिस. It would actually make you perfect, right guys? So I hope that base methods और क्यूबिंग थोड़ा प्रैक्टिस करोगे. बाकी नेक्स्ट सेशन में करते हैं, है ना? I hope that you are enjoying the sessions guys. Basic Maths Series 3 आपको पसंद आई होगी. Series 4 भी करेंगे and I hope then you would be able to do calculations at the rate of naught. मज़ा आएगा. It is related to Vedic Maths, वेदास हैं. मुझे लगता है अच्छा फील हो रहा होगा. सारे भाई बहनों को भी बोलो यार देखेंगे ये वीडियोस, ठीक है? जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है, मैथ्स की ट्यूशन्स जाते हैं, ट्यूशन्स मत जाओ, कैलकुलेशंस को इम्प्रूव करो, राइट? और जब मैं अरिथमेटिक कराऊंगा फिर देखना कितना मज़ा आने वाला है. अभी तो ये शुरुआत है, अंत बहुत 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 दूर है बट बहुत मज़ेदार है, राइट? सो गाइस आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ गाइस, 57 आउट ऑफ 79 क्वेश्चंस हमारी टेस्ट सीरीज से यार, दैट इज़ समथिंग ऑसम, अनबिलीवेबली ऑसम रिजल्ट, राइट? द लास्ट माइल UPSC CSE फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल पड़ा है. गेट अ हेड स्टार्ट प्लीज़. फ्री है. बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, एजुकेटर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंडस्ट्री फेसेस हैं. फ्री है, वीडियो एनालिसिस है, और क्या चाहिए? सो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन and compete, battle and know where you stand guys. This is something really really amazing. When a laptop in price is up to 2 lakhs, there are terms and conditions that apply, so compete, right? So this is one program you should now actually think about. With that, I hope that you have understood. Please यार थोड़े से मैसेजेस कमेंट बॉक्स पे दीजिए ताकि मुझे भी समझ आए मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है. भाषा इंग्लिश से थोड़ी हिंदी हो गई है, तुम्हें मज़ा आएगा. और या थोड़ा सा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, थोड़े से मुझे मैसेज भेजो तो मैं तुम्हें बहुत सारा कंटेंट भी भेजता हूँ. आफ्टर दैट माय नमस्कार, माय प्रणाम, माय आदाब, माय सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू. मे गॉड ब्लेस यू. प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद.